Participants, 1 minute, I'll mute you all. So, good morning, everyone. The lecture that we are going to be today, the session rather, it's going to be about SWOT analysis. This answer is very important for both your internals, externals. अब हमेशा देखो TY में भी many people have this subject of strategic management, right? तो उसमें SWOT analysis का जो आंसर होता है हमेशा पूछा जाता है. They always ask it, correct? So we'll begin with today's lecture. So before starting that, as far as I remember, you have already studied SWOT analysis in your first year, right? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, for example, आपके strengths क्या है, weakness क्या है, can anyone in the class tell me? For example, giving my example, my strength is that I am very confident, hardworking, for example, right? If I talk about my weakness, मेरा weakness क्या है? Stage fear. I mean ये सब जो है examples हो गए, right? या तो handwriting अच्छे नहीं है, वो सब weaknesses हो गए. So in the same way, can anyone quickly share in the class what are your strengths, what are your weaknesses? Like I'm having a look in the chat box. See, strengths means what are your strong areas जहाँ पे आप बहुत अच्छे हो. It could be like for example, someone is very good at artwork, otherwise very good at sports, काम अच्छा कर रहे हैं, communication skills are good. योर वीकनेसेस कुड बी अगेन कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, आप बोल नहीं पा रहे हो, स्टेज फियर है आपको, हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, जहाँ पे आप लैक कर रहे हो. सो कैन एनी वन क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स आपके क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस है. व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग एंड टिल दैट टाइम आई वांट द सेशन टू बी इंटरेक्टिव. So now let me look at the chat box. You can answer to me privately also. That's not a problem. Anyone please share. आपके क्या strengths and weaknesses है? I am looking in the chat box. Come on, no one is answering. Okay, thanks a lot for replying. Yes, correct. Someone is saying we cannot, we need to improve on our English, which is nothing but communication skills. Good, good. Thanks a lot for telling me. Anyone else? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स वीकनेस. आप ओके एक काम करो, पहले स्ट्रेंथ्स बताओ. अच्छे पॉइंट्स तो सबको बोलना ही चाहिए, राइट? आप में क्या अच्छे पॉइंट्स है, यू कैन टेल मी दैट. ओके नाउ इफ समवन आस्क मी मेरे स्ट्रेंथ क्या है, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ, यू कैन से दैट वे, आई नेवर गिव अप. हम बोलते हैं ना कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, लाइफ में कुछ भी हो आई नेवर गिव अप, राइट? तो वीकनेस क्या हो गए मेरे, एज आई सेड, पब्लिक प्रेजेंट, स्टेज फियर जो है, राइट? मेनी पीपल हैव इट. सी आफ्टर ऑल रियल अगर हम बोलते हु इज अ रियली गुड मैनेजर और लीडर, अपने ही और शी नोज उसके वीकनेसेस क्या है, बट उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, करेक्ट? वही पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है. सो नाउ आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड you all can see. So in today's session now we are going to learn about the SWOT analysis of organizations. Okay, yes, I hope this is visible enough. Yes, SWOT analysis of organizations, companies का हम पढ़ रहे हैं, right? So see, also I would request you all to kindly make a note. इसमें बहुत examples आने वाले, right? So kindly make a note of it. So look at the slides now. The first one, S, trends for any company. The first point is things your company does well. So see, for example, मैं आपको Amazon का example देना चाहती हूँ over here. Basically, if you people know, when Amazon started in India, it was the first e-commerce companies to come up with the concept of 24-hour delivery. मतलब क्या, आपको 24 hours में प्रोडक्ट विल रीच योर डोर स्टेप. आपने फॉर एग्जाम्पल आज 8 बजे ऑर्डर किया, नाउ इट्स 9, तो आज 9 बजे ऑर्डर किया,
तो कल 9 बजे के पहले आपको प्रोडक्ट घर पे मिल जाएगा, राइट। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके पहले इंडिया में फ्लिपकार्ट थी, स्नैपडील, ऑल अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स वे देयर, but if you see that way, Amazon was the first company to bring up with this 24-hour delivery concept, राइट। तो इन द सेम वे मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आपकी कंपनी क्या अच्छा कर रही है उस पे फोकस करो, राइट। सेकेंड वन, क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। सी जैसे कि हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हर कोई इंसान अलग होता है, येस और नो। नाउ आई कैन नॉट से फॉर एग्जाम्पल ज्योति है, सिमरन है, अवनी है, ये तीन, दीज थ्री आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, करेक्ट। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अवनी एक चीज जैसे कर रही है सिमरन भी वैसे ही करेंगी, नो। तो क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, मतलब हम कितना भी बोले, सी इवन दो भाई बहन होते, ट्विन्स होते, दे आर नॉट द सेम, राइट। तो इन द सेम वे आप में ऐसी क्या खूबियां है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग कर रही है, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा अमेजोन का था, उनका क्या प्रायोरिटी था, 24 आवर्स सर्विस। वो टाइम पे और किसी ने कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किया था, राइट। तो ये ऐसी खूबियां हो गई जो उन्हें सेपरेट करता है। गिविंग यू वन मोर सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा है आर्ट में, आई डोंट रिमेम्बर बट देयर समवन फ्रॉम योर क्लास, ठीक है। सो आई मीन ऐसा और कोई उन्हें कॉपी नहीं कर सकता है बेसिकली, राइट। हाँ आई मीन कॉपी कर सकते हैं, बट उसके जैसा काम नो वन एल्स विल बी एबल टू डू इट, करेक्ट। The next one is internal resources such as skilled and knowledgeable staff. Okay, giving you a simple example first, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक टीचर का सक्सेस कैसे डिफाइन होता है, now you will tell मैम ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स स्टूडेंट्स कैसा एग्जाम में कर रहे हैं, राइट। तो इन द सेम वे आप खुद सोचो कि फॉर एग्जाम्पल इफ योर बैच इज देयर, आप लोग यू आर वेरी सिंसियर, सब एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो, राइट। तो आपका अगर बैच सिंसियर है, व्हाट विल हैपन इज अल्टीमेटली मेरे सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसमें आई विल फील हैप्पी कि आई एम एज अ टीचर, चलो मैं आपको जो कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, ऑल द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन इट, इट्स गोइंग इन द राइट वे, राइट। तो इन द सेम वे आप सोचो, अगर कई बार कंपनीज की बात हो रही है, तो इंटरनल स्टाफ, दिस इज इफ यू रिमेम्बर इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। आपने जो बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ा था, इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस इज नॉलेजेबल एंड स्किल स्टाफ, मतलब आपका स्टाफ ही अच्छा हो। सी आई टोल्ड यू, अल्टीमेटली कोई बिजनेस कर रहा है, इट इज नॉट अ वन मैन शो, राइट। उसमें सब पूरी टीम होती है, वी ऑल नो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, करेक्ट। तो इंटरनल रिसोर्सेज में कौन आ जाता है आपके लिए, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, दे आर रेडी टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स आपकी कंपनी के लिए, एक हम बोलते हैं ना डेडिकेटेड एम्प्लॉयज, जैसे ही आप डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हो, राइट। तो इफ दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, तो वो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई, राइट। सी कई बार आप अगर देखो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी कस्टमर सर्विस नहीं होती है, हमें नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हम लोग व्हाट वी अज्यूम, अरे ये वेबसाइट ही बेकार है, राइट। कई बार आए बीच में स्नैपडील फ्लिपकार्ट की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि एम्प्लॉयज दे आर नॉट गिविंग अस द राइट रिजोल्यूशन, अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, तो उसमें अल्टीमेटली सब क्या बोलेंगे, अरे फ्लिपकार्ट ही बेकार है, राइट। आई मीन कंपनी का नाम, गुडविल इज बीइंग हैम्पर्ड, राइट। The next one is fourth point in strengths. You can have a look at this slide. Tangible assets, like see, even I have zoomed in now. Tangible assets like intellectual property, capital, technologies. See, this is nothing but very simple. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, इफ देयर इज वन कंपनी रिलायंस है, तो आप देखो उनकी ये सब जो फैक्ट्रीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, हम बोलते हैं ना बैंक बैलेंस होता है, क्या हम मशीनरी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये सब टेंजिबल एसेट्स हो गए। यू ऑल नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स वो जो हमारे पास है, हम फील टच कर सके, इट कम्स अंडर सर्विस मार्केटिंग बेसिकली। सर्विसेज जो है इनटेंजिबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप लेट्स टेक इट करंटली ऑनलाइन लेक्चर्स आर हैपनिंग, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल। व्हाई? आपको ऐसे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है इसमें दैट यू कैन फील और टच। जैसे कि यू नो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग आउटसाइड टू बाय अ टूथपेस्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास ही रहता है, आप कभी भी खोल के कर सकते हो कुछ, राइट? बट मेरे जो लेक्चर्स है इसमें से आप नॉलेज गेन कर रहे हो और वो इंटेंजिबल है, राइट? वो हम टच फील नहीं कर पाते। बेसिकली इसका यही मीनिंग था कि यू नो फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स टेक इट, अगर रिलायंस है तो उनके ऑल ओवर इंडिया कितने प्रॉपर्टीज हो गए, यू नो हम कई मैनी सब कंपनीज बूस्ट नहीं करते हमारे पास 3000 एम्प्लॉयज है, 10,000 एम्प्लॉयज है, राइट? तो ये भी उनका स्ट्रेंथ ही हो गया, करेक्ट? टेक्नोलॉजी मतलब आपने कितने सी, आफ्टर ऑल यू नो वी नो अगर क्वालिटी की बात हो रही है तो इफ वी इन्वेस्ट इन गुड मशीन्स फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी कंपनी को आगे जाके फायदा होने ही वाला है, राइट? यस, द नेक्स्ट वन इज वीकनेसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स योर कंपनी लैक्स। काफी ये आसान सी चीज है। सो सी, इसमें आई एम कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल ऑफ Amazon। मैंने आपको कहा था उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, 24 आवर डिलीवरी, करेक्ट? बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वीकनेस भी आ रहा था। सो सी यू नो मैं आपको इसलिए हमेशा बोला करती हूँ कि डेली लाइफ में आपके अराउंड क्या हो रहा है, यू पीपल शुड ऑब्जर्व दैट, राइट? ओके, सो वीकनेस की बात हो रही थी, थिंग्स दैट योर कंपनी लैक्स। सो इसमें अमेजोन का आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दो दे वर डिलीवरिंग ऑन टाइम, 24 आवर डिलीवरी हो भी रही थी, बट क्या हो रहा था, यू नो जो पैकेजेस आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम ऑर्डर किया है, ऑयल, एनीथिंग, तो क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कांच की बॉटल, नॉर्मली पैकेजिंग इट कम्स इन ग्लास, तो क्या हो जाता है तभी उनका पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं था, तो भले ही हमें प्रोडक्ट टाइम पे मिल भी रहा है विद इन 1 डे, वॉट यूज टू हैपन इज यू नो वो टूटा फूटा आ जाता था, क्रीम निकल जाता था, यू नो बॉटल्स वे ब्रोकन लाइक दैट। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज, सी आप खुद सोचो कस्टमर क्या देखेगा कि चलो मुझे 1 डे, आई गॉट 1 डे डिलीवरी, but ultimately what happened is you know the product that I am getting is not up to the mark, quality अच्छी नहीं है, what he'll do ultimately वो refund initiate करेगा कि कि नहीं आप ये वापस लेके जाओ, हमें refund चाहिए, या तो return करेगा वो। So see now try to understand, मैंने आपको एक point शायद पहले नहीं बताया, इवन इन इंटरव्यूज आगे जाके व्हेन यू से कि आपका वीकनेस ये है, पे अटेंशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो यू हैव टू ऑल्सो से कि आप वो वीकनेस इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली, यू नो आई हैव अ फियर ऑफ स्टेज, आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज क्राउड, अगर ये मेरी वीकनेस है, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी इंटरव्यूज में जब भी आपको पूछेंगे कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरव्यूअर को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में क्या बुराई है, व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इज यू नो कि कल ये वीकनेस कंपनी को भारी ना पड़ जाए, राइट? जैसे कि मैंने आपको कहा, व्हाट इफ टुमारो अगर जो इंटरव्यूअर है वो ऐसे पर्सन के लिए देख रहा है, दो समवन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, राइट? तो क्या हो जाएगा, ही ऑब्वियसली वोंट सिलेक्ट मी, उसकी जॉब के लिए नहीं हायर करेगा, करेक्ट? तो इन द सेम वे मैं आपको जो बोल रही थी, वेन एवर यू से योर वीकनेस, आप हमेशा उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो वो भी बोला करो। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरा खुद का, when I used to speak, I am not comfortable speaking in front of a huge audience. What I always used to say is, you know, in spite I know I am not very comfortable, but in order to overcome this, I am participating in a lot of class presentations, college fest. तो ऐसे मेरे आंसर हुआ करते थे, इससे मैं क्या कर रही हूँ कि नो डाउट सी कमियां तो सब लोगों में होती है, येस और नो, आई हैव टोल्ड यू नो वन इज 100% परफेक्ट, एवरीवन नोज, इवन आपका जो इंटरव्यूअर बॉस होगा वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, राइट? बट अल्टीमेटली व्हाट वी एम फॉर टू बिकम परफेक्ट, करेक्ट?
बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर. तो फिर यस, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अमेजोन. तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ करता था बेसिकली, वो जो प्रोडक्ट था इट वाज टूटा हुआ आता था. 24 आवर डिलीवरी था, ये इनका स्ट्रेंथ था. बट उनका वीकनेस क्या था बेसिकली, टूटा हुआ पैकेजिंग वाज देयर बेसिक वीकनेस, अगर इफ वी स्पीक इन अ मोर प्रोफेशनल टर्म, राइट. सो ओके थिंक, तो अल्टीमेटली अमेजोन ने क्या सॉल्यूशन निकाला. यू पीपल ऑब्जर्व ना, वेन एवर यू ऑर्डर ऑनलाइन, व्हाट दे डिड इज कि यू ऑल नो बबल जो होता है, बबल पैकेजेस. लाइक बचपन में हम वो फोड़ा करते थे बबल्स, राइट. मतलब क्या होता है, यू पीपल ऑब्जर्व, इफ वी यूज थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेस. अब देखो अमेजोन के पैकेजेस हमेशा कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं, करेक्ट. बेसिकली क्यों, ताकि वो प्रोडक्ट इंटैक्ट रहे. वी ऑल नो ड्यूरिंग लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, कुरियर एंड ऑल, वो पीपल क्या करते, दे हैंडल इट लाइक लिटरली, आई हैव सीन दे थ्रो द बॉक्सेस, राइट. तो अल्टीमेटली वो टूटने ही वाला है. तो इसमें क्या कहा है बेसिकली, ओके. सो अमेजोन ने क्या किया, जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस अच्छी क्वालिटी के थिक थे, उसके साथ एकदम आप देखो बबल पेपर अच्छे से रैप कर रहे हैं. कई बार आए फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. क्या होता है, प्रोडक्ट डिलीवरी आ भी जाती है, फिर वो पैकेज खोलने में बहुत टाइम जाता है, राइट. बट सी वाई दे आर डूइंग दिस इज, एक बबल पेपर की कॉस्ट हार्डली कुछ होती है, not even 5 or 10 rupees, right. But I mean, see, such a small idea came up with such a big solution, correct. The next point is things your competitors do better than you. ओके सी, इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि उसका क्या प्रॉब्लम था, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो एनीथिंग एल्स, कोई भी वेबसाइट्स थी अगर, उनका वीकनेस क्या था कि अमेजोन उनसे बेटर कर रहा था. हाउ, बाय डिलीवरिंग विद इन 24 आवर, करेक्ट. तो उन्होंने ये कैसे इम्प्रूव किया बेसिकली, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. तो आप वो एनालाइज करो. कई बार क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की बात कर रही हूँ, everything was really very good. They were great in terms of quality. सब कुछ अच्छा था, बट जस्ट बिकॉज कोई हमसे थोड़ा आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइम, दैट इज द रीजन वाई वी वेर अनएबल टू डू इट, राइट. यस. The next one is resource limitations. Okay. See, इसका मीनिंग क्या है? Try to understand. For example, Amazon की बात हो रही, we all know it's an international giant. So for example, अगर उसे इंडिया में losses भी हुए, तो इट विल बी एबल टू रिकवर इट बेसिकली, राइट. बट आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टार्टअप कंपनी है, कोई नई कंपनी आ रही है, इट इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्वालिटी अच्छा है, बट रिसोर्स लिमिटेशन, मतलब सी काफी प्रॉब्लम्स आती है कंपनी को. फॉर एग्जाम्पल कई बार मैन पावर कम है. So I mean, startup companies, they cannot afford to pay employees salary, right? Sub employees. That is why they have less employees. वन मोर मेजर लिमिटेशन इज प्रॉब्लम ऑफ फंड्स या मनी. अगर हम बोलते हैं, इट इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्टार्टअप. हम बोलते हैं ना कई बार फंडिंग का प्रॉब्लम है, लाइक दैट, करेक्ट. अनक्लियर यूएसपी. नाउ सी, इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. यूएसपी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. ओके. Um, okay. Okay, let me ask you. I am coming to the chat box now. Now I want the session to be interactive. Uh, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. You people have to tell me which company this belongs to. 2 minute noodles. 2 minute noodles. ये कौन सी कंपनी को रादर, और विच प्रोडक्ट इट डिफाइंस? एनीवन इन द क्लास? आप सबका ये फेवरेट प्रोडक्ट है. आई नो एवरीवन लाइक्स इट अ लॉट. Correct. Thanks a lot for replying. It's nothing but Maggie. Yes, everyone is answering. Thanks a lot. Maggie noodles. Yes. So see, अगर आप देखो, यू अनक्लियर यूएसपी. सो पहले मैं आपको यूएसपी का मीनिंग समझा रही थी, विच इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. सो सी, ये मैगी का जो है यूएसपी, 2 minute नूडल्स,
See, try to understand the concept of USP first. What they are trying to do here is, आपकी ये जो 2 मिनट नूडल्स एक अट्रैक्टिव टैगलाइन नहीं है. लाइक लोग क्या करेंगे कि चलो चलो 2 मिनट में फटाफट मेरा नूडल्स बन रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज ये प्रोडक्ट मैं खरीद लेता हूँ. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टूडेज टाइम नो वन रियली लाइक्स टू कुक. वाई सबको फास्ट फूड चाहिए? बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल. नो वन हैज द टाइम. किसी को मेहनत नहीं करनी है. तो आप देखो नॉर्मली इफ यू सी मैगी का बाय द टाइम हम पैकेट निकालते हैं, मसाला डालते हैं, गैस पे गर्म होता है. आइडियली इट इज नेवर 2 मिनट्स. येस और नो? आई एम श्योर सब लोगों ने, इवन बॉयज, कभी तो मैगी कुक किया होगा. It normally takes 4 or 5 minutes. That is what I'm trying to tell you here is right. या तो उसमें बेसिकली यूएसपी मतलब क्या? आप एक ऐसी टैगलाइन यूज कर रहे हो जिससे आप अट्रैक्ट कर रहे हो मार्केट को. वन मोर सिंपल टैगलाइन आई एम गिविंग यू. टाटा नैनो जब मार्केट में आई थी, उसका यूएसपी क्या था? बेसिकली द चीपेस्ट कार. आप अगर देखो ना, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे कस्टमर को क्या होगा? सी वो टाइम पे भी मारुति एंड ऑल जो अदर देयर वर अदर ब्रांड्स आल्सो जिसकी कार एफोर्डेबल रेंज में थी. बट व्हाट टाटा नैनो डिड इज कि नहीं, उन्होंने टैगलाइन ऐसी बनाई, द मोस्ट चीपेस्ट कार. राइट. तो उससे क्या हो जाता है? अच्छी आपकी यूएसपी, मतलब आपके प्रोडक्ट में हम बोल रहे हैं ना यूनिक. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा अभी क्लास में सब लोग यूनिक होते हैं. right? So that is what is explained over here. ठीक है. So unclear USP. Now see, by this what I am trying to tell you here is कई बार कंपनीज को खुद नहीं पता होता है फॉर एग्जाम्पल कि उनमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं. राइट. सो व्हाट हैपेंस इज, सी वी ऑल नो, लाइक आई विल टेल यू, आज के टाइम में देयर इज वन सेइंग, जो दिखता है वही बिकता है. यस और नो? हैव यू हर्ड दिस और नॉट? कैन यू टेल मी? जो दिखता है वही बिकता है. हैव यू हर्ड दिस सेइंग? प्लीज टाइप yes or no in the chat box, and I want everyone to answer, not just the girls. बॉयज क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह सो गए हो सब लोग? There are so many boys, still only girls are answering. Come on boys, no answer from you. अभी भी गर्ल्स का ही आ रहा है. See, still girls are only answering. I think only Dilip replied, yeah, और बाकी सब गर्ल्स ही है. Thanks a lot for replying. Okay. See. तो अनक्लियर, जैसे कि मैंने कहा, मीन्स व्हाट बिजनेसेस देमसेल्व्स आर नॉट श्योर कि वो लोग प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करें. सी, आप लोग खुद सोचो आज के टाइम में, इफ यू वांट योर कंपनी और प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल, व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड इज आप अच्छे से मार्केट करो, आपकी क्या यूनिकनेस है उसको आगे लेके जाओ. अदरवाइज आपका प्रोडक्ट कॉमन ही है, तो why will customers buy your product? Simply telling. Correct? So अभी SWOT analysis में we are done with strengths and weakness. I hope this is clear. Strengths and weakness, I hope it's clear, right? Anyone has any doubts so far? Please ask. 50% of the answer we are done. We are now left with opportunities and threats. थैंक्स अ लॉट. ठीक है. सो वील सी कितना आंसर होता है आज. लाइक सी जितना हो रहा है उतना यू राइट. बाकी का टुमारो आई हैव अ थर्ड लेक्चर विथ यू. टुमारो आई विल फिनिश दिस आंसर. ठीक है. सो 1 minute, because see now I think only 10 or 12 minutes are left, so I'm typing the answer in the chat box, so please make a note of it. Explain the concept of SWOT analysis along with examples. ठीक है आपको? Have you got the question for today's assignment? Explain the concept of SWOT analysis along with examples. So see, we'll see. Yeah, answer. This is very important for internals, externals, everything.
इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है, सो जितना हो रहा है उतना यू कैन राइट इट. एनीवे मैं वीक के एंड में ही असाइनमेंट्स आई एम कलेक्टिंग, राइट? सो यस, now we'll move forward with opportunities. Okay, let me start. Okay, to yesterday's assignment, the question that was basically explain the examples of business policy. Right, वही क्वेश्चन था. Am I right or wrong? Explain the examples of business policy across functional areas of management. It was something like that, right? Now see, don't get confused. कल का जो मैंने आपको स्लाइड बताया था, HR की पॉलिसीज, मार्केटिंग की पॉलिसीज, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन. नाउ सी, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मतलब यही सब एरियाज है. सी, आई विल टेल यू, मैं आपको एक सिंपल हिंट दे रही हूँ टू रिमेम्बर दैट. फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल, इफ माई सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, आपको MBA कौन सी फील्ड में करना है, राइट? सी, रिमेम्बर दिस थ्रू आउट योर लाइफ. नाउ इफ आई आस्क यू, then what are your answers that will come? You people tell me. Now you are in SY, so आप क्या बोलोगे? If my question to you is, in which fields one can specialize, किस में कर सकते हैं? Can anyone quickly type? एक एक करके बताओ, हम MBA किस में कर सकते हैं? Can you tell me? In which fields? Anyone? Come on guys, quickly tell me. This is a very simple answer. एक तो अभी आप लोग ही मुझे बताओ. अभी आपने yes, you all are students of marketing, correct. वो division कौन सा हो गया? Your other friends. अभी since now you all are separated. That is which division? Correct, finance. Yes. Yes. उसके अलावा भी कुछ फील्ड्स होती है. कैन यू टेल मी दैट? यू ऑलरेडी टोल्ड मी टू मार्केटिंग, फिनेंस. और कौन सी फील्ड्स हो गई? कैन यू टेल मी? वन दैट आई स्पेशलाइज्ड इन, करेक्ट. यस, रोहित हैज टोल्ड HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, करेक्ट. यस. उसके अलावा भी कुछ फील्ड्स होती है. डू यू पीपल नो? Yes, thanks a lot everyone for telling. HR, finance, marketing, economics, I would say yes होता है, but rather economics is a totally different subject, I would say, because वो arts का subject है. If you see MA in economics we can do. I'm talking about MBA. If like MBA हम कौन सी fields में specialize कर सकते? ठीक है, so I'll write it in the chat box. ओके, नाउ सी, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जस्ट हैव अ लुक एट देम. लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, प्रोडक्शन. नाउ सी, इट्स yes, IT maybe you can do it. There are specialization courses also, correct? That's right. Okay, I was talking about logistics. Now see, try to understand. Logistics में भी MBA होता है. Simply means what? Logistics का meaning क्या है? In fact, I'll tell you, you people are having these subjects in TY or even in SY, Okay, logistics simply means what? कि फॉर एग्जाम्पल यू पीपल नो, अगर मेरी फैक्ट्री यहाँ पे एंड मुझे एक प्रोडक्ट दुकान में मिल रहा है, राइट? तो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता है ट्रक से, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A से पॉइंट B मुझे प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो बीच में ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट दैट इज इन्वॉल्व इज नोन एज लॉजिस्टिक्स. ठीक है. Second one, operation research. This subject you are having in TY BMS SEM 6. Very important subject. Basically उसमें क्या होता है, you all know the simple meaning, कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह कुछ करना है, तो मेरा अल्टीमेटली, सी ऑल नो, अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस इज व्हाट? प्रॉफिट, राइट? तो हाउ विल आई मेक श्योर? सो सी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर मुझे घाटकोपर स्टेशन तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, फ्रॉम कॉलेज, तो फर्स्ट मेरा क्या ऑप्शन रहेगा कि आई विल वॉकिंग जाना है मुझे. ठीक है, व्हाट विल बी माई प्लान बी? बस ले लेती हूँ. प्लान सी, ऑटो, आई विल टेक एन ऑटो सिंपली. सो मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, इसमें आपको सबसे एफोर्डेबल ऑप्शन कौन सा है? प्लान ए, चल के जाना है. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम हियर इज.
मे बी आपको कुछ पैर में लग गया है, या तो लेट्स टेक इट समथिंग लाइक इट इज रेनिंग वेरी हेवीली एंड यू फॉरगॉट टू कैरी योर अम्ब्रेला रेनकोट समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या करोगे? अभी आप बस के लिए भी आप कितना टाइम वेट करोगे? यस और नो, राइट? तो आपने क्या किया, फटाफट ऑटो ले लिया, 2-3 फ्रेंड्स चले गए, राइट? तो मतलब सी ऑपरेशन रिसर्च में आप यही स्टडी करोगे कि आपको कौन सा पाथ अच्छा पड़ेगा, राइट? तो बिजनेसेस में भी फॉर एग्जांपल कई बार इफ यू पीपल नो, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो विच ऑप्शन शुड बी राइट फॉर देम, इसमें हम दोनों चीजें कंसीडर करते हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक भी आ जाता है, एट द सेम टाइम कॉस्ट का भी कंसेप्ट, हमें कम से कम प्राइस में क्या पड़ेगा, राइट? सॉर्ट ऑफ लाइक दैट यू आर having this subject in TY in detail. एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन. सो सी प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, अगर आप देखते हो फैक्ट्रीज में, ये जो शॉप फ्लोर लेवल पे, राइट, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, यू पीपल माइट हैव बीन टू इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ऑल, राइट? सो उसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब आप देखो, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी की फैक्ट्री है, देयर बिस्किट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? तो वो सब डिविजन्स वहाँ पे वर्कफोर्स को मैनेज करना पड़ता है, देयर वी हैव टू ऑल्सो सी कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, तो ऑल दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन. सो सी आई मीन फ्यूचर में जब भी मैं आपको क्यों ये सब समझा रही हूँ, इज अगेन इट इज हेल्पफुल टू यू इन द फ्यूचर ऑल्सो. एंड और एक बात कि remember this now throughout your entire career, when I talk about functional areas of management, तो आप ऐसे ही याद रखो कि हम MBA स्पेशलाइजेशन किस में कर सकते हैं, राइट? एरियाज मतलब यही हुए, मार्केटिंग, फिनेंस, HR, लॉजिस्टिक्स, OR, प्रोडक्शन, ऐसे काफी फंक्शनल एरियाज है. और भी चीजों में अभी इफ यू कैन सी MBA हो सकता है, राइट? व्हाट आई मेंट टू टेल यू यार इज ये सब कंपनीज में अप्लाई होता है बेसिकली, राइट? सो आई मीन मैंने आपको जो कल स्लाइड पढ़ाया था, 1 मिनट, वही है आपका आंसर. उसमें क्या था, मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स थे. 1 मिनट, लेट मी स्टार्ट. नाउ बेटर. By the time we have only 4 minutes to go, if anyone wants to ask anything, they can ask me, please. Yeah, because see, basically, I can understand. Kal, I done this concept very fast because I wanted to finish this. Yes. So see, these were the examples of business policy. This answer we have already done yesterday. For those of you who missed it out, I have again recorded and posted the same video on YouTube. So जो लोग का मिस हो गया है, you can have a look there. ठीक है? So see, now it's written examples of business policy. So आप इसमें ही देखो, सब फंक्शंस का लिखा है, राइट? HR, मार्केटिंग, मटीरियल्स, क्वालिटी. मतलब सी आप देखो MBA कई बार क्वालिटी, मटीरियल्स इज नथिंग बट प्रोडक्शन ओनली, राइट? कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. मैंने आपको कल बोला था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्ले जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम आटा किसके पास से ले रहे हैं, शुगर, वो सब रिलेटेड. क्वालिटी में भी MBA होता है, उसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस इज सी कई बार ये सब मैंने आपको बोला था, मैगी का बीच में केस आया था, राइट? पतंजलि हैड लॉन्च्ड अ कंप्लेंट कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत यूज हो रहे हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज तो क्वालिटी, तो आई मीन ये सब फूड के सैंपल्स होते हैं, उनका टेस्टिंग करना, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो हैव यू नाउ क्लियरली अंडरस्टूड? आपको अभी समझा ही होगा. फंक्शनल एरियाज मीन्स व्हाट, आप ऐसे ही याद रखो, हम कौन सी फील्ड में मार्केटिंग आई मीन MBA कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इवन आई हाउ आई यूज टू रिमेम्बर दिस, राइट? तो आपको ये आंसर इजी पड़ेगा. अदरवाइज दिस टर्म साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्या है एंड ऑल. ठीक है? So now anyone has any more doubts? Yes, I have taken the attendance. Don't worry about that. Because क्या हो रहा है? Even I am recording all lectures. ठीक है? So I mean आपका automatically ये record हो ही जाएगा.
ओके, सिंस वी हैव द लास्ट 2 minutes नाउ, अभी मैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स नहीं ले रही हूँ, आई फिनिश इट इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है? तो आज का जो असाइनमेंट था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस अलोंग विथ एग्जांपल्स, ये आज का एंड कल का आप साथ में लिख सकते हो, राइट? ओके, so since we have only 2 minutes, I would like to solve Jyoti's doubt here. Explain all HR के points. uh, okay, fine, I'll type it. So see Jyoti, first try to understand the concept of HR means what logo से related सब policies होती है, right? So for example, I am typing the assignment question, Simran. Yeah, explain the examples of business policy, cross functional areas of management. यस, सो सी कमिंग बैक टू ज्योति, मैं आपको यही बोल रही थी, एचआर मीन्स वो जो लोग कंपनी में काम करते हैं। तो अगर आप देखो यू ना, हायरिंग मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय आ रहा है, आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि क्या उनका प्रोसीजर होगा, क्या उनको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिसी मतलब व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सिंपल वर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट जिसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, राइट? अगर आप देखो ट्रांसफर्स, प्रमोशन, मतलब क्या ट्रांसफर, अगर मुझे एम्प्लॉय को, एंड सी नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मीटिंग विल एंड, ओके? सो ट्रांसफर्स मीन्स व्हाट, अगर मुझे एम्प्लॉय को मुंबई से दिल्ली भेजना है, तो आइडियली वो सब एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, यस और नो। ऐसे ही ओरली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि चलो तुम कल से दिल्ली जाओ, नो। बेसिकली एंड में पॉलिसीज क्यों बनती है, दोनों का इसमें फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयज का भी एंड कंपनीज का भी, करेक्ट? किसी को ऐसा नहीं है, बॉस अगर बोल रहा है कि चलो मुझे एम्प्लॉय नहीं पसंद है, मुझे इससे बदला लेना है, तो इसलिए मैं इसको दिल्ली भेज रहा हूँ, सो नो, शुडंट बी दैट वे। इंसेंटिव्स एंड बोनस, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल आपका ही एग्जाम्पल दिया था, रे वेजेस में आई गिवन दी एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम वेजेस, कम से कम मिलना ही चाहिए इतना, राइट? इंसेंटिव्स में वही कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर देयर, अवनी है, आई एम फेवरिंग यू रादर देन हर, तो अल्टीमेटली उसे बुरा लग जाएगा एंड आई विल एज अ कंपनी लूज अ गुड एम्प्लॉय, राइट? तो इसलिए ये सब की पॉलिसी बनाई जाती है ताकि कंपनी में फेवरेटिज्म ना हो, ठीक है? नाउ द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो वही, इफ यू स्टिल हैव अ लेक्चर, आई वुड से कल का वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड आई कैन मेक इट आउट फ्रॉम यूट्यूब कि ठीक है कौन देख रहा है कौन नहीं। सो एवरीवन प्लीज आप एक बार फिर से देखो, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, ठीक है? So we are done.